Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Barbachana Betiya, Commerce section. In economics, in previous video, in which we started the third chapter, determination of income and employment, the 3 videos on this chapter already sent to you, and this is perhaps 4th video. In previous videos, we described the overall determination of income and employment, how in an economy employment and output were decided, and it is said that aggregate demand and aggregate supply is the prime factor which going to decide the income and employment level in a nation. After that, we describe the aggregate demand. As we state that aggregate demand refers the total expenditure which is incurred by an economy within a financial year on various goods and services, and thus because only 2 sectors were assumed for equilibrium, thus aggregate demand, the components of aggregate demand AD equal to C plus I. Another is aggregate supply. हमने कहा कि aggregate supply refers the total value of goods and services which is produced within one financial year from by the different sectors of the economy. The monetary value of all goods and supply which is produced within one financial year, that is aggregate supply. And as we know that on the basis of VMPL, जितना production होगा, the output just correlate with income, because as there were output, as there were income generate, तो O equal to Y. तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को हम Y भी कहते हैं, और Y बराबर C प्लस एस, क्योंकि Y का फिर फर्दर 2 पार्ट होता है, कंजम्पशन और सेविंग. इनकम का ये 2 ही काम होता है, या तो कंज्यूम होगा या सेव होगा. इसके बाद हमने कहा था कि इट हैज 2 एस्पेक्ट्स. ठीक है, इट हैज 2 एस्पेक्ट्स. ये जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब चूंकि इसके कंजम्पशन को हमको देखना है एडी में, इन्वेस्टमेंट को देखना है, उसके बाद से फिर कंजम्पशन है और सेविंग को देखना है. यानी कि हमको 3 आइटम को देखना है, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट. इन तीनों के प्रकृति और नेचर को देखना है. तो कंजम्पशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कंजम्पशन रेफर्स दैट पार्ट of income which is going to be disposed by peoples on their various consumption items. Saving refers that part of income which is not going to expend over consumption, which is rest after consumption expenditure. And investment, as we know that it is a process of capital formation. Thus, now consumption. तो कंजम्पशन में हमको जो पढ़ना है कि कंजम्पशन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है. तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक तो पहले हम बता दें कि कंजम्पशन किसका फंक्शन है. कंजम्पशन इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, और ये कंजम्पशन फंक्शन है. इसमें है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है. तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. इट हैज 2 एस्पेक्ट्स. इसके 2 पहलू होते हैं. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज जस्ट अ रेशियो एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी इक्वल टू डेल सी बाई डेल वाई, बिकॉज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम refers the change in consumption due to change in income, and whether average propensity to consume is just a ratio between consumption and income. Now the next is propensity to save. अब
सेव हम बताए कि सेविंग भी किसका फंक्शन है, सेविंग फंक्शन है, सेविंग भी इनकम का ही फंक्शन है। कोई बचत कितना करेगा वो उसके आय पर ही निर्भर करता है। प्रोपेंसिटी टू सेव, तो बचत की प्रवृत्ति क्या है, प्रोपेंसिटी क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम विथ रेस्पेक्ट टू गिवन लेवल ऑफ इनकम, यानी दिए हुए आय स्तर पर बचत का जो अनुपात है आय से, उसी को हम प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। अगेन इट हैज टू एस्पेक्ट्स कह सकते हैं, इट हैज two aspects. Average propensity to save, it is a ratio between saving and income, APS S by Y. And again marginal propensity to save, it is marginal propensity to save, again state the change in saving due to change in income, यानी del S by del Y. तो दिस ये जो आपको चार है, APC, MPC, APS और MPS, this four thing is important in this chapter, and आगे जाकर इन चारों को आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी इसका काम आएगा। इसलिए ये चारों की समझ बना लेनी है कि APC क्या है, MPC क्या है, APS क्या है और MPS क्या है। अभी तक हमको लगता है कि हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थर्ड चैप्टर में अभी तक हम लोग एडी एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन कर लिए हैं, एग्रीगेट डिमांड के शेड्यूल को देख चुके हैं और एग्रीगेट डिमांड के कर्व को हमने ड्रॉ कर लिया है, एडी कर्व। जैसा कि हम जानते हैं कि एडी कर्व क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व यहां से जाता है एडी इक्वल टू सी प्लस आई। इसके बाद तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल भी हमने बना लिया है, जिसमें शेड्यूल में इनकम और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट हम दिखाते हैं शेड्यूल। उसके बाद से इसको डिफाइन भी कर दिया है। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स बाय हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर विद इन वन फाइनेंशियल ईयर। उसी तरह से उसके बाद हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई को देख लिया है। एग्रीगेट सप्लाई को हमने पहले डिफाइन किया। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which is produced within one financial year in an economy, and that going to be supplied, and because according to production on the basis of marginal productivity theory, as there were output produced in terms of income also generate, thus aggregate supply just became equal to income, and further income has two parts, C plus S, consumption plus saving. तो इसके बाद एग्रीगेट सप्लाई को हमने डिफाइन करने के बाद एग्रीगेट सप्लाई का हमने शेड्यूल भी देखा, शेड्यूल बना लेंगे एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल, और उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व क्या होता है, ये 45 डिग्री लाइन होता है, और एग्रीगेट सप्लाई बराबर y, y बराबर C प्लस S। तो ये तीन काम अभी हम लोगों ने किया है, एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करना, एग्रीगेट डिमांड को का शेड्यूल बनाना, एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाना, ग्राफ। एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन करना, एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल बनाना और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाना। उसके बाद हम लोग इसके 3 आइटम में सी कंजम्पशन को देख चुके हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी, इसके 2 टाइप, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेविंग को हम लोगों ने देखा है कि सेविंग क्या है, इट रेफर्स दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट गोइंग टू बी एक्सपेंड ओवर कंजम्पशन और रेस्ट पार्ट आफ्टर कंजम्पशन। इसके भी प्रोपेंसिटी टू, जो कि रेशियो बताता है, इसके भी 2 पार्ट को हमने 2 टाइप को देखा है, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। In next video, we are going to analyze some relationship between these variables. Thank you.